पहले बोर्ड को विजिबल करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो आप बोर्ड की तरफ पहले फोकस करेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया हमारा टॉपिक है आज का। तो पहले हम ये है गवर्नर, ये है गवर्नर। तो इसमें हम देखेंगे गवर्नर को पहले अपॉइंट कौन करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो गवर्नर इज appointed by the President of India. Governor is appointed by the President of India under his seal and warrant. Under his seal and warrant. ठीक, Governor is appointed by the President of India under his seal and warrant. तो सबसे पहले he is a person having the vast experience in the public welfare. Having the vast experience in the field of the public welfare. तो यहां तक हमारा टॉपिक जो है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया under his seal and warrant. He is a person having the vast experience in the field of public welfare. Now you have been requested, you have to focus on the board. Governor is appointed by the President of India under his seal and warrant. He is a person having the vast experience in the field of public welfare. ठीक, तो गवर्नर जो होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले अपॉइंट करता है। ये गवर्नर जो है इसके पास एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए पब्लिक वेलफेयर को, पब्लिक के वेलफेयर को चलाने की और कैसे लोगों को चलाना है। तो इसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज सील एंड वारंट. He is a person having the vast experience in the field of public welfare. Now our point number second will be the qualifications of the governor. Qualifications of the governor. What should be the qualifications? क्या क्या qualifications होनी चाहिए? तो पहली क्वालिफिकेशन है, he must be the citizen of India. He must be the citizen of India. पहला पॉइंट क्या है? ये देश का सिटीजन होना चाहिए। तो ये इसकी पहली क्वालिफिकेशन है। He must have the age of 35 years. He must have the age of 35 years
तो ये इसकी पहली क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट हैव द 35 इयर्स ऑफ एज। तीसरी क्वालिफिकेशन जो है, he must not hold he must not hold any office of profit. He must not hold any office of profit under the central and state government. ठीक, तो he must not hold any office of profit under the central and state government. तो अगला वाला पॉइंट हम लिखेंगे, he must not be the member of legislature or parliament. Fourth, he must not be the member of the he must not be the member of the Parliament of India Parliament of India or the state legislature. तो पहली क्वालिफिकेशन है इसके लिए, ये देश का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है, इसकी एज 35 इयर्स होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन है, इसकी ये कोई भी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। और चौथी क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर। नो, इसके बाद टर्म ऑफ द ऑफिस और टेन्योर। इसके बाद अगला वाला पॉइंट, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑब्लिक टेन्योर ऑफ द गवर्नर। इसका टाइम पीरियड क्या है? Usually and basically, the governor is appointed by the President of India. The governor is appointed by the President of India. ठीक, the governor is appointed by the President of India and he remains in office till he remains in office as long as the president likes. But normally his time period is, his tenure oblique term is only 5 years. तो टर्म ऑफ द ऑफिस जो है इसका गवर्नर का, बोर्ड की तरफ देखिए, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय the governor is appointed by the President of India and he remains in office as long as the president likes, but normally his tenure is only 5 years. तो यहां तक खत्म। अब आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा हम देखेंगे powers of the governor। powers of the governor जो है ये हम पढ़ेंगे। तो पावर्स ऑफ द गवर्नर में सबसे पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव पावर्स। इस वाले पावर में हम बात करेंगे कि किन किन व्यक्तियों को, किन किन व्यक्तिगतों को, किन किन
पुरुषों को, किन किन नारियों को, किन किन आदमियों को सेलेक्ट करता है डिफरेंट जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले द गवर्नर अपॉइंट एज द चीफ मिनिस्टर। The governor appoint as the chief minister। ये इसमें इसको पहले किसको अपॉइंट करेगा? चीफ मिनिस्टर को। फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी, फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी। पहले अपॉइंट किसको करेगा? चीफ मिनिस्टर को, लेकिन कहां से? मेजॉरिटी पार्टी से। इसी तरह से ये देखिएगा दूसरे इसी के साथ, ऑल द एग्जीक्यूटिव actions are taken in the name of the governor, in the name of the governor. He appoints as the advocate general. He appoints as the advocate general of the state. He appointed the advocate general of state with state public service commissions, with state public service commission members, with public service commission members etc. इसी तरह से ये देखिएगा चीफ जस्टिस नहीं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एटसेट्रा। ये इसका एग्जीक्यूटिव पावर है यहां तक। इसके बाद इसी के साथ तीसरा, ही मेक्स ट्रांजैक्शन of the state legislature। ठीक, तो यहां तक हमारे पास इसका एग्जीक्यूटिव पावर आया। अब इसमें देखेंगे हम दूसरा पावर, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स में हम देखेंगे no money bill can be laid before the state legislature without the recommendations of the governor। ठीक, no money bill can be laid before the state legislature without the recommendations of the governor। इसी के साथ दूसरा इसी का, गवर्नर लेज द बजट down, the governor lays down the budget of the state before the legislative assembly।
तो यही एक इसका काम है। ही यूज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, he uses the contingency fund of the state। तो यहां तक इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वाली वीडियो में और इसके पावर्स हम इलाबोरेट करेंगे, लेकिन ज्यादा होप मैं करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और कमेंट्स करें। फिर मैंने कोई कमेंट्स नहीं देखा ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। ड्रीम वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, आगे ले जाए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं आपके। तो जब आप कमेंट्स करेंगे इससे टीचर्स भी इंटरेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।